Jai Sri Swaminarayan. S.S.G.M school Cbse runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankova heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 9, today we will continue our discussion of chapter number 3 in our English subject, that is the little girl. So in our previous video we discussed about this chapter, about the main character of this chapter, that is the little girl. What is the name of the girl? That is Kezia. So we discuss about the Kezia, about the atmosphere in her family, what she want to do, and which gift she done for her father's birthday, and what did she done unknowingly, which mistake she done unknowingly, and what how her father beaten her. ओके सो हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि किस तरह से वो अपने फादर्स को बर्थडे गिफ्ट देना चाहती है, और वो बहुत ही इनोसेंट थी, वो बहुत ही छोटी बच्ची थी, उसको वो शी डज नॉट वांट टू हार्म एनीवन, बट unfortunately he harmed her father. He tore the important documents of her father's speech, and that's why her father beat her. Okay, so इसी वजह से उसके पापा ने उसको डांटा, उसको पनिश किया, क्योंकि उसने अननोइंगली उसके पापा के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसको क्या कर दिया था, फाड़ कर, जो उसने अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक पिन क्यूजन तैयार किया था उसमें स्टफ कर दिया था. सो वी डिस्कस स्टिल दैट. सो नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन from the points where we reached in our last video. So that is point number 8 on page number 35 of our English textbook. So let us begin the reading and explanation of this chapter. So point number 8. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Clung means to attach someone. Okay, so when her grandmother returned after some time, she saw her crying. So her grandmother comes toward her and उसको क्या किया, उसको wrapped किया. Okay, in a shawl. shawl यानी कि जो shawl थी उसके अंदर उसको क्या किया, wrapped किया, and उसको rocking chair में बिठाया, उनकी दादी की जो चेयर थी उसके अंदर बिठाया. तो तब क्या हुआ, द लिटिल गर्ल clung her grandmother, and her grandmother's body was too soft. So here what the writer wants to tell, that the child clung to her soft body. So she sobbed, what did God make father for? So the little girl was too much scared for her father, and what she tell here, that why did God make fathers for? तो भगवान क्यों ऐसे फादर्स को बनाते हैं? So what she want to tell here, that God should not have made fathers. Okay, तो भगवान को पिता फादर बनाने ही नहीं चाहिए. It means that she was angry towards her father, she hates her father. Okay, so here a clean hanky, darling, blow your nose, go to sleep, pet, you will forget all about it in the morning. So her grandmother trying to specify her what she tell her, that here is a clean handkerchief, please clean your nose and you will forget all the happening in the morning. Okay, so तुम ये सब जो भी हुआ है तुम्हारे साथ वो सुबह तक भूल जाओगी, ऐसा उसकी दादी उसको कहती है. So I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. So here the mother tells the little girl Kezia that I will try to explain your father but he was too upset to listen anything tonight. Okay, so but the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. So what happened? All the happening, her grandmother tells her that you will forget all the things, but
The little girl never forget this beaten, and whenever her father approached towards her, what she did, वो अपने दोनों हाथ जैसे ही उसके पापा को देखती थी तो पीछे कर लेती थी, क्योंकि उसको डर था कि फिर से अगर उसको उसके पापा ने मारा तो, इसीलिए वो अपने दोनों हाथ हर बार जब भी उसके पापा को देखती थी तब वो पीछे रख लेती थी. और क्या होता था, अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स. सो रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, यानी कि उसके गाल तुरंत ही रेड हो जाते थे, यानी कि वो बहुत ही अपने पापा से डरने लगी थी. सो नेक्स्ट क्या है, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. So here writer wants to tell about the neighbor of the little girl Kezia. Okay, so here who was the neighbor? The McDonald's. The name of the family is the McDonald's. So they had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. So what here writers want to tell that मैकडोनल्ड्स हैड अ 5 चिल्ड्रन, यानी कि जो मैकडोनल्ड्स थे उनके 5 चिल्ड्रंस थे और दे वर प्लेइंग अ गेम टैग. टैग इज गेम, अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर. इट मीन्स टू प्ले कैच कैच. जो हम कैच कैच खेलते हैं वो गेम खेल रहे थे सभी बच्चे. एंड जो केजिया थी, जो लिटिल गर्ल्स थी, वो उनको देख रही थी फ्रॉम द हॉल्स ऑफ फैंस. जो फैंस थी उसके हॉल्स में से जो गैप था उसके अंदर से उनको देख रही थी इन द इवनिंग. सो द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. So the family of McDonald's having a lot of fun with each other. So what happened, the father, the McDonald's took her little baby Mao on his shoulders. It means her little baby sits on his shoulders. Okay, and 2 little girls. So see, the McDonald's had 2 little girls hanging on his coat pockets, ran around round and round. So जो उसकी 2 छोटी लड़कियां थी वो कहाँ पर थी, तो वो दोनों साइड के जो कोट की पॉकेट्स थी उसको पकड़कर गोल गोल घूम रही थी. और जो कहाँ पर घूम रहे थे वो राउंड द फ्लावर बेड्स एंड शेकिंग विथ लाफ्टर एंड हैव अ लॉट्स ऑफ फन टुगेदर. ओके, so once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. So here what the writer wants to tell, that the little girl saw the family of Mr. McDonald's and one of their son, जो एक लड़का था उनका, उसने क्या किया, turn the hose on him. Hose means the water pipe. So उसके लड़के ने क्या किया कि वाटर पाइप को खुला करके उसके फादर के ऊपर छोड़ दिया. इट मीन्स the boys want to wait her father. Okay, so उसने क्या किया, अपने पापा को भिगाने के लिए वो वाटर पाइप था उसको खुला छोड़ दिया उसके पापा के ऊपर. So what the father do? Okay, तो उसके पापा ने क्या किया, तो उसके पापा ने उसके ऊपर एंग्री होने के वजह, उसके ऊपर गुस्से होने की वजह उसको पकड़ने लगे और जोर जोर से हंसने लगे. It means that the father does not angry, but he was laughing with his children. Okay, so then it was decided there were a different sorts of father. So after looking this scene, Kezia think that there are a different kind of father. There are various qualities in the father. यानी कि ये सब देखकर उसको ऐसा लगा कि भगवान जो गॉड है वो अलग अलग टाइप्स के फादर बनाता है. So suddenly one day what happened, mother become ill and she and grandmother went to hospital. So once on one day what happened, Kezia's mother become ill. So
शी हैज़ टू टेकन टू हॉस्पिटल. ओके, सो उसकी मदर को हॉस्पिटल में ले जाया गया एंड उसकी ग्रैंड माँ थी जो, उसको भी उसके साथ, उसकी मदर के साथ जाना पड़ा हॉस्पिटल में. सो द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक. सो लिटिल गर्ल अकेली, अब जो घर में जो कुक था, ठीक है, जो रसोईया था, उसके साथ, एलिस के साथ घर में ही अकेली रही. सो दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. तो दिन के दौरान सब कुछ ठीक था, डे टाइम. बट वैन अलाइज वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्राइड. बट जब रात को अलाइज क्या करती है, जो केजिया थी उसको जब वो बेड में सुलाती है, तब वो बहुत डरने लगी, अचानक से बहुत डरने लगी. क्यों, ऐसा क्यों? सो what will she ask, it means the Kezia asked the allies that what will I do if I have a nightmare. Nightmare it means a bad dreams, एक भयानक सपना, जो डरावने सपने आते हैं, वो उसकी बात कर रही है. सो वॉट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर. मैं क्या करूंगी अगर मेरे को कोई बुरा सपना आया तो. एलाइस, ऐसा एलाइस को पूछती है केजिया. आई ऑफ्टन हैव अ नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट विस्परी. सो हियर केजिया वांट्स टू टेल अबाउट हर फियर दैट शी हैज ऑफ्टन नाइटमेयर्स. इट मीन्स उसको बार बार ऐसे डरावने सपने आते रहते हैं. तब वो क्या करती थी, तो वो अपनी दादी के पास जाकर उनके पास सो जाती थी, ठीक है, उनके बेड के ऊपर. लेकिन अब वो अकेली है, तो तब वो क्या करेगी अगर ऐसे सपने आए तो. ओके, आई कांट स्टे इन द डार्क. मैं ऐसे डार्क में अकेली नहीं सो सकती, मेरे को डर लगता है, ऐसा वो छोटी बच्ची एलाइस को कहती है. इट ऑल गेट विस्पर, यानी कि उसको ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं और उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके पास, उसके आसपास है, ऐसा उसको सपनों में लगता है. सो यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलाइस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा. सो हियर एलाइस सेड टू लिटिल गर्ल दैट यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सो जाओ बेटा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतार कर उसको सुलाता है. एंड एलाइस क्या कहती है, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा. तो तुम आवाज मत करना और तुम्हारे थके हुए पापा को, पुअर पा यानी कि थके हुए, बहुत ही काम करके थके हुए पापा को उठाना मत. सो what happened? But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope. So वही पुराना जो हर बार उसको सपना आता है, वो फिर से उस दिन आया. The butcher with a knife and rope. Butcher means a person who cuts the animal, a person who cuts the meals of the animal. जो कसाई जिसको हम कहते हैं, जो एनिमल्स जो होते हैं उनको काट कर बेचता है, तो कसाई की बात कर रहे हैं. तो उसके सपने में कौन आता था, एक कसाई, जिसके पास क्या था, विद अ नाइफ, एक नाइफ था, एंड अ रोप. Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out. So क्या होता था उसके सपने में, तो एक ऐसा कसाई जो अपने हाथ में क्या लेकर आता था, नाइफ एंड रोप लेकर उसके पास अप्रोच, यानी कि उसके पास नजदीक आने लगता था. एंड उसकी स्माइल कैसी थी, ड्रेडफुल. ड्रेडफुल मीन्स ऑफुल, बहुत ही डरावनी स्माइल थी, जैसे राक्षस की होती है उस तरह की उसको सपने. वी कैन विजुअलाइज दिस थिंग्स, यू नो. सो उसके डरावनी स्माइल थी और उसके पास नाइफ थी, रस्सी लेकर उसके नजदीक आने लगता था, ऐसा उसको सपना आता था. एंड व्हेन वो मुंह यानी कि कहीं हिल नहीं सकती थी, तो वो क्या करती थी, अपनी दादी को पुकारती थी, ग्रांड माँ, वहाँ ही बैठ कर, ठीक है, दादी दादी ऐसे चिल्लाती थी और रोती थी. एट दैट टाइम व्हाट हैपन ऑन दैट नाइट, दैट शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर. तो उस दिन वो जैसे ही उठी, शिवरिंग यानी कि ट्रैम्बलिंग, बहुत ही डर रही थी, एकदम उसका पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा था. और व्हाट हैपन, she saw her father besides a bed, यानी कि उसके पापा को उसने देखा वहां खड़े हुए थे. a candle in his hand, और उनके हाथ में क्या थी, कैंडल थी.
तो वो और भी ज्यादा डर गई. ओके, व्हाट्स द मैटर, ही सेड. सो हर फादर सेड टू हर दैट व्हाट वाज द मैटर डियर, क्या हुआ बेटा. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं द फादर्स लव्स टूवर्ड्स हर डॉटर. ओके, सो वो अपने बेटी को देखने आते हैं कि व्हाट वाज द मैटर डियर, क्या हुआ बेटा. Oh, a butcher, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. So, what happened? जैसे ही उसके पापा को वो देखती है तो और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है. Oh, a butcher, a कसाई जिसको कहते हैं हम, a knife, I want granny, मुझे दादी के पास जाना है. ऐसे वो चिल्लाने लगती है और भी ज्यादा. So, उसके पापा क्या करते हैं, कैंडल को बुझा देते हैं, उसको अपने आर्म्स पर यानी कि जो चाइल्ड है उसको अपने शोल्डर्स पर लेके हाथ में लेकर कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, जो उनका बिग बेडरूम था वहां पर वो ले जाते हैं. सो वी कैन सी द लव्स ऑफ फादर टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन. ओके, सो a newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully took up the child. Okay, took up means covered up nicely in the bed, covered with shawl. So what happened, तो उसके फादर उसको अपने आर्म्स पर उसको लेकर अपने बेडरूम में ले जाते हैं, बिग बेडरूम में. वहाँ पर न्यूज़पेपर पड़े होते हैं, उसको हटाकर उस चाइल्ड को वहाँ पर सुलाते हैं. केयरफुली टुक अप यानी कि फिर उसको शॉल ओढ़ा, हम कहते हैं कि कवर्ड करके पूरी तरह से उसको सुला देते हैं. ही ले डाउन बिसाइड्स हर, और वो उसके पास में ही नेक्स्ट उसी बेड के ऊपर वहाँ पर लेटते हैं, बैठते हैं. half asleep, still with the butcher's smile all around her it seems. तो उसको फिर भी वो बुचर की जो ड्रेडफुल स्माइल थी वो उसके दिमाग में से नहीं जाती, वो फिर भी पूरी रात डरती रहती है. She scrapped close to him, फिर वो अपने पापा के पास आने लगती है. Snuggled her head under her arm, held tightly to his shirt. So क्या होता है, snuggled means move into a warm comfortable position or close to another person. It means कि फिर केजिया अपने पापा के नज़दीक आ जाती है, उनको क्लोज यानी कि उनके बहुत क्लोज आकर उनके शर्ट को टाइटली पकड़कर ऐसे सो जाती है. ठीक है, फिर क्या होता है, then the dark night did not matter, she lay still. फिर वो जब उसके पापा के क्लोज आ गई थी तो फिर जो भी डार्कनेस है, जो डरावनापन था, वो उस कोई मैटर ही नहीं करता क्योंकि वो अपने पापा के पास सोई थी. सी ले स्टिल, सो गई. सो हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर. सो उसके फादर ने क्या कहा कि रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, उसको कंफर्टेबल वार्म होने दो. ओके बेटा, सो ऐसा उसके फादर्स ने अपनी बेटी केजिया को कहा. सो टायर्ड आउट he slept before the little girl. तो उसके पापा भी बहुत थके हुए थे, इसीलिए वो भी अपनी जो छोटी बेटी थी उसके पास में ही उसे बेड के ऊपर सो गए. So a funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. So एक थके हुए पापा भी उसके पास सो गए तो उसको एक फनी फीलिंग आने लगी थी कि पहले वो सोचती कि मेरे पापा कितने बड़े हैं, उनके नोज, उनके हाथ वो कितने बड़े हैं, उनके हेड कितने बड़े हैं, जो हमने पहले पढ़ा था. लेकिन उसको फिर ऐसे लगा कि जो उसके फादर है वो बहुत ही पूर यानी कि बहुत थके हुए होते हैं, दिन भर बहुत काम करते हैं. सो नॉट सो बिग, वो इतने भी बड़े नहीं हैं जितने वो पहले सोचती थी. सो आफ्टर ऑल and with no one to look after him. So he was harder than grandmother, but it was a nice hardness. So वो और ये भी कहती है कि वो grandmother से hard है, यानी कि grandmother की जो body है वो बहुत ही soft है, लेकिन अपने पापा की जो body है वो बहुत ही hard है, ऐसा वो कहती है. लेकिन it was a nice क्या है hardness, ये अच्छी है hardness, ऐसा उसको लगता है. So he feel love towards her father. Okay. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald's. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed.
सो अब क्या होता है कि केजिया है उसको सब रियलाइज होता है कि उसने गलती की थी, अपने पापा के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सीट्स थे, पेपर सीट्स थी, उसको तोड़ करके. सो व्हाट ही वांट टू टेल दैट her father worked very hard and he is not able to be a Mr. McDonald, means to play with their children. Okay, so वो ऐसा कहना चाहती है कि मेरे पापा तो बहुत काम करते हैं और दिन भर काम करके बहुत थक जाते हैं, तो वो कैसे मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह हमारे साथ भी खेलें. So here she can understand the feelings of her father, the loves towards her father. Okay, so she stirred suddenly and sighed. So उसको अफसोस होता है और वो sighed यानी कि अचानक से एक लंबी सांस लेती है ऐसे करके, तो उसका आवाज आता है. ठीक है, sigh करती है. So what's the matter? asked her father. Another dream? तो उसके फादर क्या कहते हैं? So here her father listened her sigh, the voice of her sigh. So उसके पापा ये sigh भले ही वो नींद में थे लेकिन सुन लेते हैं. तो क्या कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, फिर से नया सपना आया तुमको, ऐसा उसको पूछते हैं. So oh said the little girl क्या कहती हैं? Oh, my head is on your heart, I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. So here Kezia describes her love towards her father. What she told to her father, that my head is on your heart, यानी कि उसका जो सर था वो उसके फादर के हार्ट के ऊपर था. And she is able to feel the heartbeat of her father. Okay, so वो उसके फादर की जो हार्टबीट थी वो फील कर पा रही थी. And she told her father that you have a big heart. It means you are so lovable person. It means that from the scaring from her father to love to her father, this story completed. So within this we completed the reading and explanation of this chapter. I hope that you all are clear to this chapter. So we will discuss more about this chapter, about the difficult word in our Microsoft Teams meeting. So still that, thank you so much. Jai Sri Swaminarayan.